صلوات۔ آواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ کو جشن ظہور جناب سیدہ سلامت علیہا مبارک ہو، اور انتہائی مختصر حاضری آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بھائی سماعت کیجئے گا، میں 4 منٹ آپ کی سماعت۔ ہم بہت مشہور ہیں سید اسد عباس نقوی صاحب، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سید اسد عباس نقوی صاحب کے بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر آج کی اس محفل کو رونق بخشی۔ سید اسد عباس نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے خصوصی مشیر برائے مذہبی امور انتہائی مشہور ہیں۔ حضرت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بھجن سماعت کیجئے گا۔ ماحول اس وقت اتنے شیعان حیدر کرار تشریف فرما ہے، میں مصرے پڑھوں اور مجھے اتنا اثر محسوس ہو تو میں نظم بھی سنا دوں گا، توجہ فرمائیے گا، 4 مصرے سنیے گا۔ خوشبو جدا ہے سب سے نبوت کے پھول کی۔ شاباش، بولنا ہے جو بندہ حسین کا لنگر کھاتا ہے، زبان اسی ذکر میں بولنے کے لیے ملی ہے، جناب سیدہ کا ذکر ہے۔ اول و آخر میری گفتگو کا مرکز و محور جناب سیدہ ہے۔ مصرع سماعت کیجئے گا، میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ ہر بندہ میرا ہم سفر ہو جائے۔ خوشبو جدا ہے سب سے نبوت کے پھول کی۔ بندے ابھی بھی سارے نہیں بولے، جملہ کہوں تاکہ ہر بندہ میرا ہم سفر ہو جائے۔ جناب سیدہ کا ظہور ہوا، کائنات کے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، خوشی بکھری ہوئی تھی، مسکان چہرے پہ تھی۔ ایک طبقہ آ کے پاس کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم تو بیٹوں کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں، آپ بیٹی کی ولادت پہ خوش ہو رہے ہیں۔ بھئی جملہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر محسوس کیا تو زبان سے ذکر ضرور برآمد ہوگا۔ یا رسول اللہ، ہم تو بیٹوں کی ولادت پر خوشی کرتے ہیں، آپ کو بیٹی کی ولادت پر خوشی ہو رہی ہے۔ رسول مسکرا کے فرماتے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں، اللہ نے مجھے پھول عطا کیا۔ ابھی ہاتھ کچھ نہیں چلے گا، آپ ہی ایک جملہ سنو اور پھر ہر بندے کا ہاتھ جسے غازی عباس نے طاقت دی ہے کہ زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے، وہ میرے ہم سفر ہو جائے گی۔ کائنات کے رسول نے کہا اللہ نے مجھے پھول تحفے میں دیا ہے، اللہ اس پھول کی خوشبو سے میری تکلیفوں کو دور کرے گا، اللہ اس پھول کی خوشبو سے میری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ جو کائنات کی تکلیفوں کو دور کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کی تکلیفوں کو دور کرے اسے زہرا۔ اب 4 مصرے سماعت کیجئے۔ خوشبو جدا ہے سب سے نبوت کے پھول کی، عظمت یہ کم نہیں ہے جناب بطور۔ یہ ہاتھ سلامت ہے، کبھی محتاج نہ ہو کسی۔ بھائی جان میں 4تھا مصرع پڑھوں، اس مجمع میں شیعان حیدر کرار کے اس مجمع میں جس بندے کا عقیدہ ہو وہ نہ بول سکے وہ بندہ جشن میں آیا ہی نہیں ہے۔ خوشبو جدا ہے سب سے نبوت کے پھول کی، عظمت یہ کم نہیں ہے جناب بطول کی۔ جنت میں جائے گا وہ بھلا کس طرح رضا، ناراض جس سے ہو گئی بیٹی رسول کی۔ پتہ لگا جشن ہو رہا ہے، زندہ سلامت۔ بہت بڑی بات آپ سلامت۔ میں اسی مزاج کے 4 مصرے اور پڑھوں، اسی مزاج کے سماعت کیجئے۔ حبے در زہرا کو جو ایمان نہیں سمجھا۔ اگر شاہی میں اس بندے کو آگے سلام کروں گا، میں دوسرا مصرع پڑھوں وہ بندہ چپ رہ جائے۔ مصرع سنیے گا۔ حبے در زہرا کو جو ایمان نہیں سمجھا، پھر پڑھتا ہوں۔
जो बंदा अभी भी मुतवज्जह नहीं है दूसरे मिसरे के लिए, आज शायद चौथे मिसरे के लिए आफ्ताब भाई दावत देता है, मैं दूसरे मिसरे में चौथे मिसरे का लुत्फ ना आए ना तो मैंने इस दर से खैरात ही कोई नहीं मांगी। हुब्बे दरे ज़हरा को जो ईमान नहीं समझा, बस हिफ्ज़ किया उसने वो कुरान नहीं समझा। क्या बात है, ये है जश्न, ये हाथ सलामत है। हुब्बे दरे ज़हरा को जो ईमान नहीं समझा। भाईजान उलमा से भी मुझे दुआ चाहिए, बुजुर्गों से दुआ चाहिए, जवान मेरा साथ देना। हुब्बे दरे ज़हरा को जो ईमान नहीं समझा, बस हिफ्ज़ किया उसने वो कुरान नहीं समझा, बस हिफ्ज़ किया उसने वो कुरान नहीं समझा। सर उठाओ कीदे वालों, बस हिफ्ज़ किया उसने वो कुरान नहीं समझा। गुस्ताख हुआ जो भी करे बिन्ते नबी पर, हमने कभी उस शख्स को इंसान नहीं समझा। बोलता वही है जिसका अकीदा बोलता है। क्या बात, दो तीन कते और पढ़ लूं। एक जगह मैंने पढ़े हैं, आपकी समातों को हदिया कर, खुदा का दीन अली मौला मुकद्दर फातिमा ज़हरा। खुदा का दीन अली मौला मुकद्दर फातिमा ज़हरा, मुकद्दर की हिफाजत को वली होना जरूरी है। जो बंदा समझ के बोला है मैं उसे मिंबर से डाल देता हूँ, आओ चौथे मिसरे तक सफर करो मेरे साथ। खुदा का दी अली मौला मुकद्दर फातिमा ज़हरा, मुकद्दर की हिफाजत को वली होना जरूरी है। मकाम सैयदा ज़हरा समझ आ जाएगा, लेकिन समझने के लिए ज़हरा अली होना जरूरी है। मकाम सैयदा ज़हरा समझ आ जाएगा, लेकिन समझने के लिए ज़हरा अली होना जरूरी है। एक ज़ाविया और देखिएगा, कुदरत का जो निशा हो उसे क्या कहोगे तुम। कुदरत का जो निशा हो उसे क्या कहोगे तुम। कुरान की जो जान हो उसे क्या कहोगे तुम। जनाब सैयदा की शान में एक ज़ाविया देखिएगा भाईजान, नजर करो। कुदरत का जो निशान हो उसे क्या कहोगे तुम, कुरान की जो जान हो उसे क्या कहोगे तुम। नबियों की माँ का रुतबा बहुत है मगर रजा, जो मुस्तफा की माँ हो उसे क्या कहोगे। भाईजान चार मिसरे अभी मेरा छोटा भाई पढ़ के गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें एक रद्दो बदल मैंने किया थोड़ा सा, वो मैं नजर। निगाहे मरियम बता रही है रिदाए फिजा। ये जुबानें इसी जिक्र में मोहतर है, कभी मोहताज ना हो जो बोलने वाले। निगाहे मरियम बता रही है रिदाए फिजा। मिसरा दूसरा, चौथे मिसरे के बाद में बात करेंगे, दूसरा मिसरे का कदर और कीमत देखिएगा। निगाहे मरियम बता रही है रिदाए फिजा। नबी की बेटी के दर पे झुकना किसी भी तमगे से कम नहीं। जिस बंदे को तमगा समझ में आया वो बंदा बोलेगा। जिस बंदे का ये अकीदा है, लो ये ज़ाविया पहले किसी शायर से सुना हो, दाद रजा पास का हक ही नहीं बनता। और अगर ये ज़ाविया नया हो, पहलू नया हो, तो फिर इस तरह बोलना जैसे जनाबे सैयदा के जश्न में बोलने का हक है। निगाह मरियम बता रही है रिदाए फिजा। नबी की बेटी के दर पे झुकना किसी भी तमगे से कम नहीं था। समझ ना आए तो अपनी किस्मत, मगर ये तारीख कह रही है जनाब ज़हरा का एक खुतबा अली के हमले से कम नहीं। जनाब ज़हरा का एक खुतबा अली के हमले से कम नहीं। एक मनकबत के दो चार शेर सुना दे, मैं सिर्फ चाहता हूँ 6 मिसरे एक नजर करो। जनाब सैयदा के इख्तियार सुनिए। जनाब सैयदा का जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे। जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे, वो चाहे तो जर्रे को भी आकाश बना दे। हाय हाय हाय,
जिंदा सलामत रहिए, हाथ कभी मोहताज ना किसी। भाईजान ये जब मैंने 6 मिसरे लिखे, 4 मिसरे हम काफिया हम रदीफ होते हैं, ये 4 मिसरे जब कज़वी साहब मैंने लिखे ना, मुझे नहीं अंदाजा था कि इसके सारे काफिये मुख्तलिफ 4 जुबानों के। पहला अरबी जुबान का नक्काश, अरबी जुबान का। दूसरा आकाश जो है ये हिंदी जुबान का लफ्ज। तीसरा काफिया है कल्लाश, कल्लाश कहते हैं मुफलिस जिसके पास कुछ भी ना हो, कल्लाश तुर्की जुबान का लफ्ज। चौथा फारसी जुबान का, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसका लुत्फ आपने खुद ले। भाईजान 3 काफिया मैंने बता दिए, चौथा नहीं बता रहा। अरबी जुबान का पहला काफिया, हिंदी जुबान का दूसरा काफिया, तुर्की जुबान का तीसरा काफिया, चौथा फारसी का है। समाप्त कीजिएगा मिस्र। जनाब सैयदा के इख्तियार बता रहा हूं, जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे, वो चाहे तो जर्रे को भी आकाश। बोल तो कोई बात नहीं, 2 मिसरे मैंने इकट्ठे पढ़ने, सोती के साथ देखिएगा। जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे, वो चाहे तो जर्रे को भी आकाश बना दे। यूं दुश्मन हैदर को वो कल्लाश बना दे, खालिक को भी कहना पड़े शाबाश बना दे। जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे, वो चाहे तो जर्रे को भी आकाश, यूं दुश्मन हैदर को वो कल्लाश बना दे। भाईजान देखिएगा, 4 मिसरे मैंने पढ़ दिए, 2 मिसरे सुनिएगा। सिर्फ आपने मुबाहला ज़हन में रखना है। मुबाहला कायनात के रसूल है, मौला हुसैन गोद में है, इमाम हसन की उंगली थामी हुई है, पीछे जनाब सैयदा है, और पीछे खैबर शिकन खतीब मिंबर सलूनी साहिब नहजुल बलागा। ये मंजर ज़हन में रखना है और इख्तियार जनाब सैयदा का एक मंजर में आपकी समातों को हदिया करना। जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे। ये जितनी देर तक मेहमान आने में 6 मिसरे मुकम्मल कर रहा हूं। जिस नक्श को चाहे उसे नक्काश बना दे, वो चाहे तो जर्रे को भी आकाश बना दे, यूं दुश्मन हैदर को वो कल्लाश बना दे, खालिक को भी कहना पड़े शाबाश बना दे। और हैरान हुई चश्मे फलक तेरे हशम पर, चलता है अली मौला तेरे नक्शे कदम पर। दरूद पढ़ने के लिए मोहम्मद एक मरतबा और दरूद पढ़ने हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद पर सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम दीगी अता गहराइयों से नासिर आने मिल्लत कायदे वादत अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब को खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेपनाह वसूफियत के तहत जंग और मुल्तान के मुसाफर तय करते हुए लाहौर के लिए खास वक्त निकाला और आज इस महफिल को रौनक बख्शी। हम बेहद मशहूर हैं। आप सबसे यही गुजारिश है कि कायदे वादत नासिर मिल्लत अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब का बिलखसूस अरकान मजलिस वहदत मुस्लिमीन इस्तकबाल फरमाएं, ताकि राय साहब को ये मुद्दा याद रहे कि वो लाहौर की सरजमीन पे जश्न कौसर में शिरकत के लिए लाहौर गए थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बुलंद आवाज से शाह साहब जवाब दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हम दिल की अता गहराइयों से नासिरान मिल्लत कायदे वादत फख्रे कौम मिल्लत जाफिया अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उनके बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने जंग और मुल्तान की तवील मुसाफत के बावजूद लाहौर के लिए आज वक्त निकाला और इस जश्न कौसर की बाबरकत और पुरनूर महफिल में शिरकत फरमा कर इस मजीद महफिल को चार चांद लगा दिए। अब बेहद मशहूर है कायदे वादत नासिर मिल्लत अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब के कि उन्होंने बेहद मोहब्बत फरमाई है। जिला लाहौर शमाली लाहौर के लिए बिलखसूस बेहद मशहूर है। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नशिस्तों पर तशरीफ रखिएगा।
नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नारों का जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। आप तमाम मुअज्जिज़ीन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी नशिस्तों पर तशरीफ रखिएगा और स्टेज से आगे सब साइड पर तशरीफ ले जाए। सामने एक मरतबा फिर बुलंद आवाज से दुरूद मोहम्मद वाले बस मैं मनकबत की सिर्फ 2 कदम और मेरी हाजिरी होगी। गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा। भाई जान आप मुतवज्जे हो जाए, आप मैं 2 बहुत मुख्तसर छोड़ दी मैंने मनकबत भी 2 कदम से पढ़ रहा हूँ, देखिएगा मेरी तरफ। भाईजान अगर आप बैठ जाएं तो बड़ी नवाजिश। अब साहब देखिएगा, मिसरा सुनिएगा भाईजान, दूसरा मिसरा खास तौर पे नजर कर रहा हूं। गौहरे ताजे सखा के बाद, जाफरी साहब, फिदा भाई, गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, हर सखी को मुर्तजा के बाद देखा जाए। थक गया वो बंदा जो इस मिसरे में भी नहीं बोल सका। आओ जो इबादत करने चाह रहे हो सैयद, खास तौर पे उम्मतियों को लिए खास तौर पे मिसरा नजर कर रहा हूँ। गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, हर सखी को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा, कौन कितना मोहतरम है कायनाते हस्त में। हाँ, वो बंदा मैं चेहरा देखना चाहता हूँ जो जनाब सैयदा के जश्न में आया हो। मैं मिसरा पढ़ूं, वो बंदा चुप रह जाए। गौहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, हर सखी को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा, कौन कितना मोहतरम है कायनाते हस्त में, इहतराम सैयदा के बाद देखा जाएगा। हाँ हाँ, किसी को उठने चाहिए। आप सलामत। कौन कितना मोहतरम है कायनाते हस्त में, इहतराम सैयदा के बाद देखा जाएगा। और मिसरा उला एक ही मर्तबा पढ़ के मैं दूसरा मिसरा हवाले कर रहा हूं। कौन कितना मोहतरम है कायनाते हस्त में, इहतराम सैयदा के बाद देखा जाएगा, मौत की सुनकर खबर मीसम ने सूली पर कहा, जिक्र शाहे लापता के बाद देखा जाएगा। हाँ, यही हक है इस जगह में बोलने का। क्या बात है। कौन कितना मोहतरम है कायनाते हस्त में, इहतराम सैयदा के बाद देखा जाएगा, मौत की सुनकर खबर मीसम ने सूली पर कहा, जिक्र शाहे लापता के बाद देखा जाएगा। सत्तर कर बढ़ाई का मिसरा एक मैंने तस्मीन किया, मिसरा सवाल कीजिएगा भाईजान, शेर सुनिएगा। मौत की सुनकर खबर मीसम ने सूली पर कहा, जिक्र शाहे लापता के बाद देखा जाएगा, और ने उम्र साद से चलते हुए ये कह दिया। तारीख जिनके ज़हनों में मैं मिसरा हवाले करूं। और ने उम्र साद से चलते हुए ये कह दिया, जो भी होगा करबला के बाद देखा जाएगा। हाँ, सलामत रहे आप, ये हाथ मोहताज ना हो। मौला साहब, और ने उम्र साद से चलते हुए ये कह दिया, जो भी होगा करबला के बाद देखा जाएगा। आखिरी 4 मिसरे होगी मेरी हाजिर। इबरत की एक दलील है गुस्ताखे सैयदा। भाईजान बंदा चुप रह गया अकीदे वाला तो मैं दुख लेके जाऊंगा। इबरत की एक दलील है गुस्ताखे सैयदा, इबलीस का वकील है गुस्ताखे सैयदा। हाँ, काफी है, 2 मैंने बता दिए। भाईजान आपने इतनी महफिलें, इतनी मजलिसें सुनी होंगी, कभी शायद चौथे मिसरे का काफिया पहले नहीं बताता। मैं पहले बताने जा रहा हूं। पहले मिसरे का काफिया है दलील, दूसरे मिसरे का काफिया है वकील, चौथे मिसरे का काफिया है खुद कफील। खुद कफील बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो अहबाब जानते हैं। खुद कफील का मतलब है शय इतनी वाफर मिकदार में आपके पास मौजूद है कि आपको कहीं से मंगवानी नहीं पड़ती। मसलन पाकिस्तान में अगर कहूँ मैं कपास है तो पाकिस्तान कपास के मामले में खुद कफील है, तो इसका मतलब है उसे कपास कहीं से मंगवानी नहीं पड़ती, उसके पास खुद इतनी मिकदार में मौजूद है, इतनी वाफर मौजूद। भाईजान खुद कफील का मानी आपने सुन लिया, और मैं 4 मिसरों के बाद हाजिरी तमाम कर रहा हूँ। हर अकीदे वाले बंदे को, जो बंदा यहाँ
جشن جناب سیدہ میں عقیدت سے آیا ہے اس کے حوالے کرو. ہر بندے نے بولنا ہی 4 مصرے میرے 2 طبقے بھائی جان 2 طبقوں نے نہیں بولنا. ایک وہ جو مجھ سے یہ 4 مصرے سن بیٹھے ہیں اور ایک وہ جو سردی میں سن بیٹھے ہیں. ان 2 مصروں سے مجھے 2 طبقوں سے مجھے داد کی تمنا ہی نہیں ہے. اور جو بندہ عقیدہ جس کے زبان سے نکلتا ہے, جو بندہ زبان عقیدہ کے لیے اسی لیے بولتا ہے کہ یہ اللہ نے زبان بنائی ہی اسی ذکر میں ہے. عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ سیدہ ابلیس کا وکیل ہے. گستاخ سیدہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں